हेलो गर्ल्स, कुछ बच्चों में एक प्रॉब्लम थी फॉर मैकेनिज्म ऑफ Gattermann synthesis. तो I'm again explaining to you the mechanism of Gattermann synthesis. Gattermann synthesis is a reaction where phenols they react with HCN in presence of HCl and aluminium chloride and result in the formation of aldehydic phenol. Normally, most of the time, the CHO group goes to the para position. Exact reasons are not known. If at all some ortho product is formed, it is prepared or it is obtained in very optimal quantity, very low yield. Now, let us take up the mechanism of Gattermann synthesis. What happens in the first step is HCN, which we have taken here, reacts with HCl and results in the formation of a chloroimine ion. This it is a you can say unstable intermediate. This chloroimine then reacts with aluminium chloride and we get here formaldinium ion. This is formaldinium आयन. अब इसको फॉर्मेल्डिनियम आयन क्यों कहते हैं? देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है, CH सो और डबल बॉन्ड O होता है. सो ये CH की वजह से ही वी गेट द नेम फॉर्मेल्डी. एंड यू ऑलवेज नो C डबल बॉन्ड N इमीन बोलते हैं उनको हम. यहाँ पे हमने इमीन बोला था ना, C डबल बॉन्ड N इज इमीन. सो द नेम ऑफ दिस कार्बोकेटाइन, intermediate कार्बोकेटाइन इज formaldinium ion. Now, it is this formaldinium ion which now attacks the phenol. Let's see how it is attacking. Now, we have a phenol. We're carrying out this reaction in presence of aluminium chloride. Actually, what this aluminium chloride is doing, it is simply activating the phenol for further attack. अब यहाँ पे बेटा आप पहले भी आप पढ़ चुके हैं that phenoxide ion is always more reactive than phenols and because they are more stable, they are highly resonance stabilized. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था. So aluminium chloride is doing nothing but is providing us indirectly the phenoxide ion. ये आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास phenoxide ion बन गया. तो अब ये जो phenoxide ion है, it is now attacking upon the फॉर्मेल्डिनियम आयन. ये आप देखिए वही फॉर्मेल्डिनियम आयन जो अभी हमने पहले बनाया था फ्रॉम HCN, HCl एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, वही फॉर्मेल्डिनियम आयन है. सो इट इज़ अटैकिंग द फॉर्मेल्डिनियम आयन. जैसे हमने आपको बताया कि मैक्सिमम मोर देन 90% प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वो इज़ अ पैरा आइसोमर. सो मैं आपको यहाँ पे पैरा आइसोमर का बनाने का ही बता रही हूँ. दिस इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज आई टोल्ड यू अर्लियर. द एरो हेड इंडिकेट्स बिकॉज हेयर वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, दे आर मूविंग टू द डायरेक्शन which is electron deficient in nature. So if you are moving electron pair here, one electron pair means one bond. So you get a double bond here. One additional bond is formed between this carbon and oxygen. Now this carbon has excess of electron. Earlier it was forming a double bond with the next carbon of aromatic ring. So it shifts the electron pair to the next bond. ये तो आप resonating structures जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बहुत बार आप लिखते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है, वैसे ही हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं. सो दैट फाइनली दिस नेगेटिव चार्ज कम्स एट पोजीशन पैरा. अब पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है विच इज़ फॉर्मेल्डिनियम आयन. दिस इज़ एक्चुअली कार्बोकेटाइन. सो डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रॉन पेयर जो नेगेटिव चार्ज फाइनली पैरा पोजीशन पे आ जाता है. यहाँ देखिए ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है और फाइनली ये पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. बेसिकली वो नेगेटिव चार्ज डोनेट हो जाएंगे टू दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकेटाइन एंड टू दिस negatively charged carbocation which is earlier carbon ion now gets attached to this carbocation and we get this intermediate. ये आपके सामने intermediate आ गया. अब ध्यान से अगर आप देखें तो the earlier compound was an aromatic compound. Now this intermediate which we get now has lost its aromaticity. अब ये देखिए ये कीटोनिक फॉर्म है, डबल बॉन्ड O. यहाँ पे हमारे पास इनोलिक फॉर्म था, ये इनोलिक फॉर्म था ना OH, यहाँ पे कीटोनिक फॉर्म है. नाउ दिस कीटोनिक फॉर्म हैज़ लॉस्ट इट्स एरोमेटिसिटी.
Now the driving force behind the next step is to regain the aromaticity. You know that aromatic compounds are always more stable than their non-aromatic or you can say अनएरोमेटिक वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं होगा बोलने के लिए, यू कैन से नॉन एरोमेटिक काउंटर पार्ट. एक्चुअली नॉन एरोमेटिक भी मैं नहीं बोलना चाहती हूँ. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं. तो एनी हाउ यू कैन से दैट दिस कंपाउंड हैज़ लॉस्ट, दिस कीटोनिक फॉर्म हैज़ लॉस्ट इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर, सो इमीडिएटली इट्स अंडरगो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म एंड गिव्स अस द इनोलिक फॉर्म. दिस इज द कीटोनिक फॉर्म C double bond O, this is the enolic form COH, because here the enolic form is a aromatic compound. The driving force behind this step is to regain the aromatic character, to regain the aromaticity, and thus now we obtain aldimine compound. This is again aldimine. CH I told you. अमीन्स क्या होंगे? इमीन क्या होता है? C डबल बॉन्ड N इज़ IMINE. इमीन हम उन सभी कंपाउंड्स को बोलते हैं जहाँ C डबल बॉन्ड N होता है, बिकॉज ये एल्डिहाइड का डेरिवेटिव बन जाता है, सॉर्ट ऑफ H है, तो इसको हम एल्डिमीन डेरिवेटिव जस्ट नेम हमने दे दिया है. इसके बाद का बेटे सारा का सारा प्रोसेस जो है, जितने स्टेप्स मैंने आगे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस के हैं. ये एल्डिमीन की सिंपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाती है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास फिनोलिक एल्डिहाइड बन जाता है. जिन बच्चों को आगे का मैं मैकेनिज़्म अभी आपको समझा रही हूँ, आगे का मैकेनिज़्म आप आराम से समझ पा रहे हैं, आप उसको याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए. अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप डायरेक्टली इस स्टेप के बाद, जब हमने ये एल्डिमीन बनाया है, इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ पे एरो लगाइए. एरो के ऊपर H पॉजिटिव, नीचे आप वाटर, लाइक जैसे हमने किया ना, ये मैं यहाँ लिख के आपको दिखा देती हूँ. ये मैंने एल्डिमीन बनाया है CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, OH. आप डायरेक्ट ऐसे एरो बना दो, एरो के ऊपर H पॉजिटिव आए लिख दो, यहाँ पे वाटर लिख दो और डायरेक्ट ये हमारे पास फिनोलिक एल्डिहाइड बन गया. डायरेक्ट इसके साथ आफ्टर दिस स्टेप डायरेक्ट एल्डिमीन लिख के H पॉजिटिव आयन वाटर से हाइड्रोलिसिस, डायरेक्ट ये फिनोलिक एल्डिहाइड आप लिख सकते हैं. हाँ, जिन बच्चों को समझ आ जाएगा और जो पूरा मैकेनिज्म आगे लिखना चाहते हैं, अगर आप इतना तक भी लिखते हैं, कोई ज़्यादा आप ऐसे मार्क्स लूज़ नहीं करेंगे. मे बी मैक्सिमम टीचर्स तो आपको शायद फुल मार्क्स ही दे देंगे, और अगर किसी को काटना भी होगा आधा नंबर ही काटेगा उसके अंदर. और अदरवाइज़ अगर जिन बच्चों को आगे पूरा एक्सप्लेन करना है, जिनको पूरा लिखना है, उनके लिए मैं पूरा भी समझा देती हूँ. हम अगेन रिपीटिंग, अगर आपको दिक्कत आती है, आप एल्डिमीन के बाद डायरेक्टली H पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब है वाटर से हम डाल रहे हैं और किसी थोड़े से माइल्ड एसिड की प्रेजेंस में डाल रहे हैं, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में डाइल्यूट सॉल्यूशन हम ले रहे हैं मिनरल एसिड का. इस एल्डिमीन की जब हम मिनरल एसिड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट फिनोलिक एल्डिहाइड. सो जितने भी ये स्टेप्स हैं, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस के ही स्टेप्स हैं. अब ये स्टेप भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो वी आर यूजिंग एसिड. एसिड कहाँ अटैक करेगा? एसिड अटैक कर रहा है या तो ऑक्सीजन पे भी अटैक कर सकता है या नाइट्रोजन के पास अटैक कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा होंगे और ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन पेयर वो के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं. सो इन दिस केस इट अटैक्स द नाइट्रोजन बिकॉज दिस नाइट्रोजन हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है एंड वी गेट दिस एनायन. ना अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, अगेन इन नेक्स्ट स्टेप आई हैव सिंपली रिटर्न सॉर्ट ऑफ कीटोनोल टॉटोमेरिज्म. यहाँ कीटोनिक ग्रुप तो नहीं है, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही. यहाँ डबल बॉन्ड N था, यहाँ हमने सिंगल बॉन्ड N कर दिया. हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं. अब इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे आ गए, तो नाउ दिस कार्बन हैज़ बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो नाउ इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज. बेसिकली अ बॉन्ड मीन्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव पूरा का पूरा आपने नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर दिया, सो नाउ दिस कार्बन विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज.
अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, तो वाटर विच इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, इट नाउ अटैक्स दी कार्बोनिल कार्बन। ये देखिए वाटर यहाँ पे अटैच हो गया है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन के ऊपर, आई एम सॉरी आई शुड नॉट यूज द वर्ड कार्बोनिल कार्बन, दिस इज़ अ कार्बोकेटाइन। वाटर अब अटैच हो गया कार्बोकेटाइन के साथ, यहाँ पे वाटर अटैच किया हमने कार्बोकेटाइन से। सो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया अब कार्बन का, उसको तो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं यहाँ वाटर से, but oxygen of water is now carrying a positive charge, and oxygen carrying a positive charge is highly unstable because oxygen is highly electronegative in nature. So it immediately picks up a electron from this bond. ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, और नाउ H पॉजिटिव आयन विल लीव, H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकलेगा और नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। सो नाउ नाइट्रोजन इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ देखिए OH है। अब नेक्स्ट स्टेप में साइमल्टेनियसली हो रहा है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। आप चाहें तो इसको 2 स्टेप में शो कर दीजिए, लेकिन ये एक साथ हो रहा है, आप चाहते हैं तो इसको एक ही स्टेप में शो कर दीजिए। अब एक स्टेप क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है मैंने यहाँ से शो किया, आप चाहो तो इसको यहाँ से भी शो कर सकते हो, एज यू चूज, कुछ भी आप इधर से दिखा दो या इधर से दिखा दो, एक ही बात है। अगेन ये OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रही है, हाइड्रोजन इज गोइंग विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर, H पॉजिटिव आयन, ये देखिए H माइनस लिखने का मतलब, अगर बच्चे हम किसी भी एरो हेड के ऊपर प्लस लिखते हैं या कुछ भी नहीं लिखते हैं, इसका मतलब वो चीज़ ऐड हो रही है जो स्टार्टिंग कंपाउंड था। अगर आप माइनस लिखते हो इट मीन्स उस रिएक्शन में से वो चीज़ निकल रही है, वो प्रोडक्ट के साथ बाहर आ रही है। सो हियर आई हैव रिटन माइनस H पॉजिटिव आयन, इट मीन्स यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन निकल गया। और कहने का मतलब है जो हाइड्रोजन आयन, जो एसिड हमने यूज़ किया था वो कैटालिटिक अमाउंट में यूज़ किया था, वो एसिड हमने पहले यूज़ किया, एक H पॉजिटिव आयन यूज़ किया और एक H पॉजिटिव आयन निकल गया। सो कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड वॉज यूज्ड। सो यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन निकला। अब ये डबल बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। ये देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, तो वही कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप डबल बॉन्ड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, तो 5 तो बॉन्ड बना नहीं सकता कार्बन, इमीडिएटली ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है। क्यों क्लीव होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रल अमोनिया मॉलिक्यूल निकल रहा है। ये देखिए ये अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल गया ना यहाँ से, तो माइनस मीन्स निकलना, सो यहाँ से एक न्यूट्रल अमोनियम आयन और अमोनियम, सॉरी नॉट अमोनियम आयन, अमोनिया मॉलिक्यूल न्यूट्रल हमारे पास यहाँ से निकल गया है, और वी गेट हियर H पॉजिटिव आयन, अमोनियम मॉलिक्यूल, अमोनियम न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड आवर प्रोडक्ट जो हम चाहते थे, फिनोलिक एल्डिहाइड। सो दिस इज़ द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ गेटरमैन सिंथेसिस। बच्चे अभी भी प्रॉब्लम आती है तो अगेन आस्क मी, अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म टू यू। थैंक यू गर्ल्स।